Welcome to brand new show Face to Face. This is an initiative of DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education, DME, and DME has three schools. The other two schools are DME Management School and DME Law School. DME is one of the premier institutions affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. DME has been doing well in all the compartments, whether it's academic or co-curricular or extracurricular, has been bagging prizes in the university literary festival, cultural festival, as also the sports meet of IP University. And since the time this COVID-19 has struck, DME has tried to risen up to the occasion and has made all those necessary preparations which were really a need of the hour to conduct the classes and to cover the course. We did this in the last semester. And then in the beginning of this semester, or before the beginning of this semester, we made all the preparations of doing the video lectures and the tude classes. And we have started our classes even on 4th of August, much before other institutions could think of. So DME has completely a digital campus. Let us have a look on this digital campus. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Welcome back to Face. And as I was telling you already, this is a program which has been conceived and executed by DME Media School. And if I tell you about DME Media School, this is one of the top media institutions in the country. And we organize different such activities which are essential for the growth of the students and to make a considerable contribution towards the growth of academics. DME Media School organizes the international conference every year, and the third edition of this conference, ICANN 3, was organized in June only. And I can also add here that this ICANN 3 was the first in the world which we consider the digital live conference. Besides this, we also organized the International Film Festival, SIFI. The first edition was organized in 2019. And this year, again, we are going to organize the second edition of this film festival. Besides this, we organize every month VG Varghese lecture series, wherein we invite distinguished people from media industry and academics to speak on
on certain contemporary issues. So we work on all-round growth of the students. And talking about this face-to-face, this is basically a chat show wherein the dean interacts with the three students drawn from three different years. So since I'm the dean, I'm talking to these three students, and every day we have a new episode. And on all weekdays, we are broadcasting this program. So to begin with, firstly, let us know who all three students are there with us in today's episode. So welcome back again to Face to Face. Now, I mean, everybody has seen who all are there in today's edition. We have with us Shivam Ganeriwala. He is from the outgoing batch. I mean, since everybody must be knowing this, that the final year batch has practically not passed out for the reason that the final exam has not taken place. And because of the policy issues, the things have not yet been finalized. So they are the batch in waiting. And then we have Madhvi Srivastav, who is now in the third year because she has been promoted to fifth semester. And then we have Priya Yadav. She is in the second year because she has been promoted to third semester. So welcome everybody to this face-to-face. And as it is customary, we will start chatting firstly with the senior most person. And since Shivam is from the outgoing batch, so we will start interacting with Shivam first. And as we have seen in the AV, what are his interests and passions and inclinations. Otherwise also, I as a dean and other teachers know it pretty well that he is one person who is always ahead, who is always actively involved, whatever activity is being done, be it CP, be it ICANN, or I mean anything that is happening on the campus of DME Media School. So Shivam, firstly, we would like to know from you only, what are your passions, inclinations and all? First of all, thank you for inviting me on face to face with Manvi and Priya, of course. And sir, as you know, I've completed my diploma in photography. Means that was my half year left for diploma when I joined DME for Bachelor of Journalism and Mass Communication. So means photography was my passion from last around 4 to 5 years. From class 11th and 12th, I'm doing photography. So generally, I like fashion a lot because I love covering the different fashion styles and all wildlife. I did cover when I went to zoo from the Ajit sir, of course. And then photography has always been my passion. And as a career, I've also I would like to choose it. Being in DME, I've learned a lot of things, especially from you, sir. You are always there for us. And organizing those events like ICANN and obviously SIFI, that was the biggest event for us in our entire life till now. SIFI was a very, what can I say, the best part to learn something. And three of us, like me, Sonal Yukta, we were the part, and Rohit and Praveen, of course, we were the part of the core team. Not only the core team, but the entire batch of DME, the media school. They were very helpful with us, and then we made it successful. So, I've learned a lot, and now events, photography, like organizing, managing things,
and that all is, like I would like to pursue everything, and especially the filmmaking, the Me Too documentary that we made in 2000 in third semester. So that also has been the part of my life now. That filmmaking is also a option for me to work. Yeah, yeah. I mean, since Shivam, you refer to Me Too documentary, can you tell the audience what this documentary was about? Me Too documentary was basically about the actually I forgot. It was about the misuse of power, we can say, or something like misactions and uh, basically an abusive method of treating girls. So then only the girls have started raising their voice against whatsoever bad happened with them. So that was the story that we managed to make a documentary on it with different visuals, where we went to different colleges and we talked to students and we took interviews of people regarding Me Too. What are their views regarding it? So that was the thing, and we made a very nice documentary on it with different visuals, and of course we won the first prize, and uh, everyone Yeah, 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 yeah. That was IMS, in yeah. IMS IMS previously. Noida, yeah, yeah, Yeah. yes. Hmm. Okay, so I mean, since you were telling us about your, I mean, photography interest and all, but if I ask you, what is that one thing that is the closest to your heart? One thing, sir, like in the reference of like DME or in my life. No, no, in my, I mean, whatever you do, I mean, your Mhm. interests, your inclinations, or whatever you do and you want to do, in fact. So, what is that one thing? Sir, like earlier it was photography. I will admit it that fashion photography was the thing very close to my heart. I obviously wanted to work with Tapnu Ratnani, the best fashion photographer of India. And but I even thought of going to New York and LA for the internships. And but after getting into events and everything, now the closest thing to my heart is that I want to organize events. Uh, Maybe in India or outside, anywhere where I get a chance to organize, and not a small or very close event, but a huge event. Hmm. So I've been thinking of organizing a street race. Okay. So So, so, that is so, being so, close. yeah. So, I mean, once you join the event management industry, then you will try to translate to put into action your own ideas. I mean, this is what you Yes, want to say, I believe. yes, sir, yes, sir. Okay. Okay, so moving on to Manvi. Manvi is in the third year, and as we have seen, and everybody knows in DME, not only in DME Media School, in the entire campus of DME, that she is very passionate about dancing. So even if she does not tell about that, everybody knows about that. But then this is good thing, she is passionate about that. But then otherwise also she is found active all the time on the campus, and she is full of energy. And but then, Manvi, we would like to hear from you only. What are your passions and interests? Well, I think it's the best thing कि खुद बताना नहीं पड़ रहा अपने बारे में कि हाँ मैं डांस करती हूँ, मुझे ऑलरेडी लोग जानते हैं। जब Hmm. डांस का नाम आता है तो लोगों के जुबान पे होता है नाम मानवी, एंड वो चीज सुन के बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत खुशी होती है। सो Hmm. डांस तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ एंड मैंने कहीं से सीखा नहीं है। मैंने एक साल ड्रॉप किया था तब, मतलब आफ्टर 12th, तो उस टाइम मैंने 3-4 महीने प्रोफेशनल डांसिंग पे फोकस किया था एंड तो क्या मॉडलिंग। डांस करने के लिए ब्रेक लिया था एक साल का? नो सर, वो कुछ, बट देन मैंने सोचा कि क्योंकि अब वो टाइम निकल चुका है एंड मुझे ये साल कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो व्हाई नॉट डांस। Hmm. तो मैंने साथ साथ फोटो शूट्स भी करे, बिकॉज मेरा मॉडलिंग में मैंने आई वाज 8 इयर्स ओल्ड तब 2010 में मैंने शूट किया था, मतलब वो एक मैगजीन के लिए था एंड तब तो मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, मतलब मेरे को पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि मेरा मन इसमें इतना बन जाएगा कि हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है आगे। तो 9th में शूट करा करा प्रोफेशनली, देन करते गए देन अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, गूगल के लिए करा, जियो के लिए करा, एंड इनफैक्ट कल मेरा अमेजोन के लिए शूट था।
सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड डांस भी साथ साथ चलता रहता है, मतलब मॉडलिंग एंड डांस इज लाइक माय प्रायोरिटी। तो अमेजोन के लिए क्या शूट किया तुमने? सर एक अनकही क्लोथिंग ब्रांड है, तो हम्म, उनके उनके जितने भी आउटफिट्स हैं वो सारे अमेजोन पे ही जाते हैं, तो उसके हम्म, लिए model चाहिए होती है, तो मैं उनकी मतलब एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ, क्योंकि हम्म, बिकॉज जब मैंने शूट करा तो दे वर लाइक कि यही मॉडल चाहिए हमें और कोई नहीं चाहिए, जबकि मतलब यूजुअली कहते हैं कि हाइट इशू होता है वगैरह वगैरह, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट हाँ मतलब अभी तक सब स्मूथ जा रहा है, आती है थोड़ी प्रॉब्लम। So how do you get such kind of assignments? सर फर्स्टली एजेंसीज के साथ हमें टाइप रखना पड़ता है, ऑल्सो फोटोग्राफर्स, हम्म, जैसे हमारे ऐसे बडिंग फोटोग्राफर्स हैं शिवम जैसे तो ऐसे फोटोग्राफर्स से बातचीत रखनी पड़ती है, जिससे उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें शिवम जैसे का क्या मतलब? शिवम शिवम के थ्रू कोई 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 मौका नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला तो मिल जाएगा मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ, अब वो जब इंडस्ट्री में जाएगा तब मौके देगा ना। बिल्कुल हम्म, तो नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब जब इनका बैच आया था पहली बार, तो आई रिमेम्बर जब हम इनसे इंटरेक्शन करने गए थे फर्स्ट डे पे, हम्म, तो मानवी वाज द वन दैट शी वाज द वन टू meet me first on that day. हम्म, And I remember we have a pic also, Manvi together, me, you, Karan and Krishna. So we all have the pic also. We had a lot of interaction that day. We sat outside of the college after the college was over. ये हैंड So मैगी yeah, and after, yeah, everybody knows ki हाँ, if anybody wants to like organize a dance show or anything, the first person to call is Manvi Deepal. Be it anybody. हाँ, तो इसका मतलब मानवी ये हुआ कि भले ही शिवम ने डायरेक्टली कुछ ना किया हो, लेकिन ही वुड हैव स्प्रेड द वर्ड अराउंड फ्रॉम वेयर यू माइट बी गेटिंग द वर्क, ऑफ कोर्स। isn't it? Okay, so I mean, what is more close to your heart, dance or modeling? सर मॉडलिंग, यूजुअली सबको लगता होगा डांस, बट मॉडलिंग, मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, हम्म, मैंने ना जब मैं कॉलेज आई थी तो मैंने डांस सोसाइटी सोचा और डांस सोसाइटी ज्वाइन करनी है, तो मेरी हम्म, क्लास में श्रुति श्रुति शर्मा, उसने मुझे बोला कि तू फैशन में ज्वाइन कर, तू शूट करती है वगैरह वगैरह, यू शुड, एंड आज का दिन है मैं फैशन सोसाइटी की कन्वीनर हूँ। अब मुझे हम्म, इतना अच्छा लगता है कि उसके एक हल्के से पुश की वजह से आज मैं फैशन सोसाइटी की कन्वीनर भी हूँ, डांस सोसाइटी की भी हूँ, एंड नवजोत मैम से कल ही पता लगा था कि उन्होंने मुझे कल्चरल हेड भी बना दिया, सो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग। एंड हम मेरे फ्रेंड्स का प्लान था सैटरडे था उस दिन कि हम लोग जाएंगे कहीं घूमने के लिए एंड हम्म, पूरा स्पेंड करेंगे, एंड नवजोत मैम ने कहा मानवी तुम्हारा तुमने अभी अभी ज्वाइन करी है सोसाइटी और मंडे कंपटीशन है, तुम्हें सैटरडे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, दोस्तों को करा मना, मैंने कहा मुझे वो करना है, एंड मंडे जब हम कंपटीशन में गए थे मैं फर्स्ट टाइम, तो मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज की कि देखा मैं उस दिन नहीं गई तो एटलीस्ट मैं फर्स्ट तो आई ना, आई हैव अ ट्रॉफी ऑफ दैट, वो बहुत अच्छी फीलिंग है, तो मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी डांस से ऊपर मॉडलिंग है। तो तुम क्या सिर्फ डांस और मॉडलिंग करती हो, इसके अलावा और कुछ नहीं करती? पढ़ाई लिखाई करती हो ना? सर बिल्कुल सर, मार्क्स देख लेना मेरे अच्छे आते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल्सो मेरा इस क्वारंटीन में सबसे बेस्ट चीज, सबसे लाइक मोस्ट प्रोडक्टिव चीज जो मैंने करी है वो मैंने एडिटिंग सीखी है। मैंने हम्म, एडिटिंग सीख ली और काफी अच्छे लेवल पे सीख ली, प्रीमियर प्रो पे मुझे प्रॉपर्ली आती है, मतलब म्यूजिक एडिटिंग भी आ गई, वीडियो एडिटिंग भी आ गई, एंड आई थिंक जितनी वीडियोस डलती हैं सबको पता होगा लास्ट में मैं जरूर लिखती हूँ एडिटेड बाय मानवी श्रीवास्तव, सबको पता होना चाहिए। तो तुमने एडिटिंग अपने से सीख ली कि किसी ने सिखाया तुम्हें? और यूट्यूब। हम्म, सो किस तरह के डांस तुम प्रेफर करती हो करना? सर मेरे को सारे स्टाइल्स पसंद है एक्सेप्ट बैलेट, बैलेट हम्म, बोरिंग होता है मुझे लगता हम्म, है, हम्म, बट हाँ मैं सारे स्टाइल्स कोशिश करती हूँ करने की, बट आई एम बेस्ट इन बॉलीवुड, हम्म। डांस भी थोड़ा बहुत आता है एंड देन वैकिंग थोड़ा बहुत। और व्हाट अबाउट सिंगिंग, यू आल्सो सिंग? सर वो कभी कभार तो समटाइम्स। अब अभी हम तुमसे क्या मतलब क्या तुम परफॉर्म करोगी, डांस करोगी कि गाना गाओगी अपनी ऑडियंस के लिए? हम्म, क्या आप कह रहे बोलो हो? दूंगी। हाँ, तो ठीक है, पहले गाना गाओ फिर डांस करना। मैंने इंस्टाग्राम पे भी Catching with the team. बहुत ज्यादा हिम्मत और बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद कि मैं डालूं ये पोस्ट कर दूं, तब जाके मैंने इंस्टा पे वो पोस्ट की थी, सो आई विल सिंग आर्या। देखिया मैं चांद देखिया,
नूरे वाले सितारे देखे पर तेरे जैसा ना कोई देखे मैं लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं मुझे इश्क ये करने से अब को रुक सके ओ हारे मैं दिल हारे ओ हारे मैं दिल हारे ओ हारे मैं दिल हारे मैं हारा तुझ पे मैं हारा तुझ पे ओ नहीं था Okay, good. It was impressive. So we will see your dance in the second round. Now let us move towards Priya Yadav. She has been waiting since long. So Priya, if I ask the same question to you, what are your passions and interests? गुड इवनिंग सर। Good सर evening. मेरा पैशन जब मैं डीएमई में आई थी तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरे को लगा कि यार डिजाइनिंग जब हमने सीखनी स्टार्ट की तो अभी लॉकडाउन में अब कुछ तो कर नहीं सकते थे तो बस ठीक है लेक्चर वगैरह देखे वीडियो लेक्चर्स वगैरह फिर उसके बाद फोटोशॉप वगैरह जब सीखना स्टार्ट किया मैंने खुद से फ्रॉम यूट्यूब तो मेरे को लगा कि हाँ यार मैं आती तो नहीं है बट हाँ सीख के अच्छा कर सकती हूँ डिजाइनिंग में और बीजेएमसी परस्यू करने का मैंने आफ्टर 12th ही सोचा था मेरे को उस टाइम ये भी नहीं पता था कि बीजेएमसी एक सेपरेट कोर्स किया जाता है मुझे लगा कि अच्छा जर्नलिज्म के लिए होता होगा खाली तो ठीक है उसके बाद जब पता क्या था एडवर्टाइजिंग की वजह से मैंने बीजेएमसी ज्वाइन की इन माय 11th एंड 12th आई एम फ्रॉम कॉमर्स विद मास मीडिया मास मीडिया में एडवर्टाइजिंग का सुना था तो जब हम एडवर्टाइजिंग चैप्टर पढ़ते थे ये एडवर्टाइजिंग में ये बहुत सारे हम एड डिस्कस करते थे मैम के साथ तो फिर मेरा वहां से थोड़ा जनरेट हुआ कि अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट बनाया तो कैसे बनाया मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट लोग बनाते कि जो हमारे ऑडियंस होते हैं उनके माइंड में स्टिक कर जाती है वो चीज तो मेरा फिर वहां से स्टार्ट हुआ एंड देन अब डिजाइनिंग में मेरे को आगे जाना है तो पिछले तुम एक साल तुमको डीएमई मीडिया स्कूल में हो गया and I have found that you are very active and you participate in so many things. So during your participation in different activities, what is that one thing which has attracted you the most? सबसे ज्यादा तो ये कि मीन स्कूल में सब मेरे को कभी सीखने को मिला नहीं कुछ बिकॉज स्कूल में यही होता है कि अच्छा आपने अगर पहली बार आपको चांस मिला अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो ठीक है अगर नहीं परफॉर्म कर पाए तो फिर आपको चढ़ाया जाता था या मतलब आगे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था तो सबसे बेस्ट थिंग जो कॉलेज की होती है वो यही है कि यार ठीक है अगर गलत भी हो गया तो भी आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है और आप अपने आप को मीन्स डेवलप कर सकते हो तो यही चीज है तो तुमने किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया एक साल में सर अभी तो फिलहाल मैंने अनुगुंज में मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया था खाली एज ऑडियंस जाके बैठ जाती थी शो वगैरह देखती थी मतलब जो भी चलता था बट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर अनुगुंज जब हुआ था अनुगुंज के प्रीलिम्स तो उसमें मैंने मतलब वो क्या कहते हैं उसको वॉलंटियरिंग की थी तो उसमें फिर कृतिका मैम ने जब चूज किया तो मैंने कहा ठीक है मैम करेंगे वॉलंटियरिंग हमेशा ऑडियंस बन के तो कुछ सीखना इनको तो मिलेगा नहीं तो सब वहां से मैंने अभी तक तो खाली वॉलंटियरिंग की है बस Okay, so moving on to Shivam again. Shivam, since you have passed 3 years in college and then you already told us that you have so many friends and you are obviously good in making friends in your junior batch, in your senior batch also, but then we would like to hear from you only about your friends and the teachers with whom you have come across all these 3 years and how did you enjoy the college life? So talking about first let's talk about the teachers obviously. From starting, obviously Shushmita ma'am has been very supportive to me. Starting from the first year, be it like I was not attending my classes, my attendance was short. Ma'am used to scold me that तुम्हारी attendance बहुत कम है, पापा से बात कराओ and all. But first year के end में मैम ने बोला भी था मेरे से कि शिवम तुम ट्रस्ट खो रहे हो, I'm not able to trust you.
But I said, ma'am, ki nahi, ma'am, I'll gain your trust again. I'll attend all the classes and I'll do whatever you want me to do. And obviously, I did it. I won her trust. I guess so. I don't know whether ma'am is. I mean, Shivam, do you understand that you are in a live program and whatever you are saying that can be treated as your confession? Yes, sir, no problem. So you improved your attendance later? No. Yes, sir. Yes, I did improve my attendance later, like right from the third semester. I remember my first semester attendance was around 9 or 10%, and the second semester was 13 or 14. अब And इम्प्रूव then हो गई third, ना? I mean, लास्ट के सेमेस्टर्स में इम्प्रूव हो गई ना हाँ अटेंडेंस? sir, हाँ sir, हाँ sir. चलो Last ठीक है. semester में, and then Sir Harjeet sir, obviously being he's a great photographer, he was very good. He's mentor to us being in photography, the DME Frame Society. We were working with them. Rahul sir was very cooperative. He used to guide us, like he used to show us the right way to do a thing. And being in event, Sanchita ma'am and Manmeet ma'am, sir, SIFPI was the, like I said, it was a great event. And working under their mentorship was like, we learned a lot from them, like how to do a work with a method and with a proper step. Talking about friends, first day I only interacted with Karan because even he's an engineer dropout and I'm also engineer dropout. So we both kind of shared a same bond. So we both were the only, means he was the first person that I met in DME. But like friends and talking about people I know, there are many from senior batch. I still remember the batch of Ravi Sharma and Dishant Mayank, everyone. And then after that, Amir Heather and the batch. Then in my batch, Rohit, Praveen, Anmol, Shubham, Sonal, and then Karan. तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं सर, चारू बहुत ही है, मतलब फ्रेंड्स तो की तो क्या है सर. लिस्ट काफी लंबी है, तुम्हें याद रखने में भी थोड़ी दिक्कत होती होगी. सर लिस्ट तो बहुत है सर. फिर मानवी के बैच में तो ज्यादा होंगे सर. मेरे बैच में तो पता नहीं, मतलब थे नेहा थे, फिर दूसरे सेक्शन से मेगा, नैनिका, जानवी, विकी सर, ये दूसरे सेक्शन से थे. देन इनके बैच में सर शुभम मंडल, सिद्धार्थ, राहुल, मतलब सर बहुत है सर, मतलब लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है. चलो ठीक है, इतनी लिस्ट काफी ठीक है. So moving on to Manvi, since Manvi you are in all such activities, obviously there is a team required, so many people are there, and you must be having friends not only in your batch, in your junior and senior, but also in other schools of DME. So what would you tell us about your friends, your teachers, and the campus life? Sir, firstly, I would like to talk about the campus. The day I came to college, infrastructure देख के जो मुझे खुशी हुई कि बस यही चाहिए था, अब तो बढ़िया करेंगे, देखना थर्ड ईयर तक पापा खुश ये वे हो. So मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. कैंटीन हमारी डांस रूम बन चुकी थी काफी टाइम तक. कैंटीन तो मेरा अलग ही नाता, एकदम रिश्ता है. एंड अब तो डांस रूम बन चुका है, सो आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है. वी हैव अ प्रॉपर बेसमेंट. एंड टीचर्स की बात करें तो हरजीत सर, सचिन सर, कामिल सर तो फ्रॉम डे वन मतलब मेंटोर हमेशा ही रहे हैं. एंड कामिल सर तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं. मतलब मैंने सभी टीचर्स के साथ देखा है कि मैं हल्का सा भी बीमार पड़ती थी ना, तो सब ऐसे हो जाते थे कि ठीक है, तबीयत ठीक है, और मेरे को पूरे एक हफ्ते तक पूछते थे तबीयत ठीक है. बाला मैम सामने से आती थी, मानवी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मैम तबीयत ठीक है. मुझे लगता था बीमार बहुत पड़ती है लड़की, इसकी तबीयत सही है. इनफैक्ट एक क्लास चल रही थी, तो मैंने कामिल सर को बोला सर मुझे बहुत भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे ना 10 मिनट पहले क्लास के भेज दिया, सबको बिठा के रखा कि तुम जाओ खाना खाओ जाओ. और लास्ट वीक में भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तो उसके बाद से तुम्हारा शिफ्ट करना पड़ा एपिसोड. एंड कामिल सर प्लीडेड विद मी कि उसकी तबीयत खराब है तो वो नहीं कर सकती. सो दैट इज प्रूवन. मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, मतलब काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी. तो हरजीत सर के साथ तो ये था कि मुझे ना कैमरा मतलब पकड़ना भी पसंद नहीं था, कि सर मेरे से मत कराओ ये चीज, मुझे नहीं होगी. एंड आज जब वो देखते हैं मुझे एडिटिंग में वीडियोस, I think Manvi.
लेट गया सर उसको। Okay, so we move on to Manvi. Are you connected now? Yes, sir. Yeah. So go ahead. हाँ जी। So सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी? हाँ, अब बोलो। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके सर, एक मिनट। हाँ, तो हरजीत सर को मैं बोलती थी कि मुझे कैमरा पकड़ना पसंद नहीं है। देन अब जब मैं वीडियो एडिट करके भेजती हूँ तो वो इतना प्राउड फील करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तो अच्छा है, मेरे टीचर्स मुझे देख के खुश है, वो प्राउड फील करते हैं। और इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती कि टीचर्स आपके अपने मेंटर को देख के खुश हो कि हाँ हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है, वो कुछ कर रहा है। सचिन सर ने बहुत मदद करी, मनमीत मैम के साथ तो अलग ही मेरी बॉन्ड हो गई है। इसका मतलब तुम माधवी मतलब ऐसा काइंड लुक है, थोड़ी अटेंशन सीकर हो। ऐसा तो नहीं है सर, बट आई एम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये कह सकते हैं। So you must be doing such things so that people are attentive towards you, are attracted towards you. Do you do such things deliberately? सर ऐसा नहीं है सर, मतलब आई थिंक मुझे लगता है मैं जो करती हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ उसमें। तो जब आप बेस्ट देते हो तो सामने वाला खुद ही, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाला खुद अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि तुमने मान लिया कि तुम्हारा ऑरा है। ऑफ कोर्स आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मुझे खुशी है इस चीज की, अच्छी बात है, मुझे अच्छा। तो तुम अभी हम लोगों को डांस सिखाने वाली थी ना मानवी? Did you listen me? हाँ सर, मेरे एक सेकंड सर। हाँ सर एक सेकंड। तो मानवी में इतनी एनर्जी है, इतनी एक्टिव एनर्जी है इस लड़की के अंदर सर। चाहे डांस प्रैक्टिस को लेके हो, चाहे मॉडलिंग को लेके हो, या किसी को सिखाने को लेके हो, चाहे क्लासेस में हो, चाहे फन में हो, सर बहुत एनर्जी है इस लड़की के अंदर। लेकिन इंटरनेट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एनर्जी को मानवी की ना। हाँ सर, मुझे तो किसी गड़बड़ हो रही है। अच्छा ठीक है, तो अगर ठीक हो गया तो हम आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल। हो गया ना? हाँ तो ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर योर डांस मूव्स। सर मैं कुछ वैकिंग के स्टाइल्स बताती हूँ जो मैंने अभी नए सीखे हैं थोड़े बहुत। फर्स्टली वैकिंग के लिए हैंड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, एंड देन वी हैव फ्रंट एंड बैक, इन फ्रंट एंड बैक, एंड देन इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब इसको स्पीड में करना होता है, बस यही एक मूवमेंट होता है जो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को कॉपी करना होता है बस। सो इट्स लाइक, और ये स्पीड में, एंड देन और स्पीड बढ़ती जाती है, एंड देन यू कैन जस्ट इट एंड वैक अराउंड। सो ये एक अलग डांस स्टाइल है, एंड देन मैं धीरे-धीरे इसको सीख रही हूँ। So good. So we hope that you will further grow in your dance and modeling and will go a long way. So moving to Priya, though you have been there only for 1 year, and that too you said that you started becoming more active in the second semester, and then this corona came in between. But then, I mean, whatever time you have been there on the campus, you would have made many friends in your class, I believe. I mean, going by your nature, you would have made friends within your class or in your batch and not your seniors and all. But certainly we would like to listen from you about your friends and teachers and the campus. सर जब मैं कॉलेज में आई थी एडमिशन के लिए, तो जब मैंने अपने डीएमई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और फिर मैंने बाद में स्टूडियो देखा, तो उस समय बिल्कुल फ्लैट हो गई। मैंने पापा को उसी टाइम कहा कि पापा मेरे को डीयू नहीं चाहिए, मेरे को उस डीएमई चाहिए, मेरे को उस डीएमई में एडमिशन दिला दो आप। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है, तेरा एडमिशन हो जाएगा, नंबर भी अच्छा, और क्या कहता है सर के साथ तेरा इंटरव्यू भी है। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में जब मैंने एडमिशन डीएमई में हो गया तो मैं बड़ी खुश थी। मेरी मम्मा आई नहीं है डीएमई में, तो मैंने मम्मा को वर्चुअल टूर दिखाया था, तो मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगा। फिर सब फ्रेंड्स की बात आती है तो मैं डे के बाद मैंने ज्वाइन किया था। मैं रिया से मिली थी,
और सो ग्रेटर नोएडा ही रहती है, तो साथ आना जाना लोगों से मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी रही है, लाइक आयुषी, रुचि एंड अभिलाषा। तो हाँ, अच्छे दोस्त मीन्स लाइक मेरे को डीएमई में नंबर्स ऑफ फ्रेंड तो नहीं मिले, बट हाँ क्वालिटेटिव फ्रेंड मिले हैं। एंड सर फैकल्टी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आई थिंक प्रमोद सर से मिली थी ड्यूरिंग माई एडमिशन। तो मेरे को वहाँ पे भी सर बड़े अच्छे लगे, मीन्स लाइक उन्होंने जैसे बात की कि अच्छा ऐसा होता है। और अतुल सर मिले थे मेरे को, तो मेरे को वहाँ पे आपसे मिली और बाला मैम से, तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि यार जैसे कॉलेज में जाते तो कहते हैं हाँ 100% प्लेसमेंट मिलेगी, तो वो चीज नहीं थी। उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट जरूर मिलेगी, अदरवाइज हम खाली तुम्हें भेज सकते हैं। तो दूसरी बात मेरे को डीए के बारे में ये बहुत अच्छी लगी थी। एंड फिर उसके बाद तो सबसे ज्यादा मैं आई थिंक कृतिका मैम से कनेक्टेड हूँ, बिकॉज मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं सबसे पहले कृतिका मैम से बात करती हूँ। अगर सब्जेक्ट रिलेटेड है तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स है, तो फैकल्टी तो सारी अच्छी है डीएमई की। Good. So moving on to Shivam again. Shivam, if we would like to know about your parents and family and the kind of support that you have been getting from them. Sir, my parents, like as usual, they have always been supportive, especially my dad. So like when I was talking to my dad about leaving engineering, so he said that मतलब क्या करोगे आगे? I said कि मुझे फोटोग्राफी करनी है। तो दैट सेड कि ठीक है तुम अपना कोर्स ढूंढो, जो भी कोर्स है जहाँ पे भी है पता करो उसके बारे में। तो आई डिड केम, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप अलोन टू दिल्ली। व्हेन आई केम एंड आई फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी, फ्रॉम वेयर आई डिड। तुम कहाँ से दिल्ली आए? सर फ्रॉम वाराणसी, माय होम टाउन। ओके। Because I left my engineering after 4 months when I joined. So I came to Delhi in December 2016. एंड देन 2017 से नया कोर्स वहाँ पे शुरू होने वाला था। तो डैड सेड कि चलो ठीक है तुम जाओ अपना वहाँ पे एडमिशन ले लो। तो डैड डिडंट इवन कम विद मी, नीदर माय मॉम केम, आई केम अलोन एंड देन आई टुक माय एडमिशन। देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स डैड केम टू सी अबाउट द इंस्टीट्यूट। तो इवन मॉम सेड कि इसी कोर्स से रिलेटेड आगे कुछ कर लो ग्रेजुएशन में। तो देन द आइडिया केम ऑफ डूइंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। So like my mom and dad had always been supportive to me whether I chose photography, because I'm a science student and usually during 2015 and 16 that was कि हाँ engineering करो ये करो, but इन सब लाइन में से ज़्यादा वो स्कोप नहीं देखते थे लोग। But mom dad said तुम्हें जो करना है करो, but ऐसा कुछ करना जो तुम्हें पसंद हो, ये नहीं कि किसी के दबाव में आके you are doing something। या चलो जब तुमने एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग छोड़ा, that time your parents supported you and they allowed you to do whatever you wanted to do. But now at the end of 3 years, what is his response? Whether they are satisfied with whatever you have done in these 3 years? Yes sir, actually मेरे mom dad दोनों ही कॉलेज आए हुए हैं, आपसे बात भी हुई। बट हाँ बस एक ही चीज है, जो कोविड के चक्कर में जॉब का इशू अब हो गया है, तो अब जॉब ही ढूंढ रहे हैं, मतलब वी आर सर्चिंग एवरीवेयर अबाउट द जॉब्स इन मीडिया एंड प्रोडक्शन ऑब्वियसली। तो डैड इज लाइक कि हाँ देखो बात करो इधर उधर, देखो कि कहाँ पे मौका मिल रहा है करने का। Okay, so moving on to Manvi. Manvi, what will you tell us about your parents and family? तुम्हारे अनम्यूट करो मानवी, अनम्यूट करो। या सर पापा सिंगल पेरेंट है, मम्मी की 10 इयर्स पहले डेथ हो गई थी, शी वाज अ हार्ट पेशेंट। तो मैं भैया पापा ही हैं घर में, एंड बीइंग अ सिंगल पेरेंट बहुत सारी चीजें होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती है एज अ फादर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। सो ये चीज है कि कभी पापा ने मॉडलिंग के लिए या मेरे डांस के ऊपर या कि मॉडलिंग के वक्त कैसा आउटफिट है क्या है, कभी मुझे रोका टोका नहीं, नेवर। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि मेरे शूट पे पापा मेरे साथ आए कि अच्छा आज शूट है, अच्छा ये आउटफिट है। एंड मैंने पापा के साथ यूट्यूब चैनल भी बनाया पॉप्स एंड पटाखा के नाम से, यू कैन चेक इट आउट। एंड उसमें मैं पापा को मतलब पापा के साथ फुल ऑन मस्ती करती हूँ, व्लॉग्स भी बनाऊंगी अलग अलग। सो ये बस पापा मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, बस खुद से झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम दुनिया से झूठ नहीं बोलोगे, तुम खुद से झूठ बोलोगे। तो कभी खुद से झूठ मत बोलो, बाकी जो करना है करो लाइफ में, कभी रोकते नहीं।
And what about your brother? भैया इवेंट कंपनीज में है एंड इवेंट कंपनी में एज वेल एज वो शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं। उदित भैया जो हमारे सीनियर थे, उदित भारद्वाज, उनका एक यूट्यूब पे चैनल है ब्लैक लिस्टेड प्रोडक्शन। तो अभी उनकी एक लेटेस्ट मूवी आने वाली है सैटेलाइट से रिलेटेड। सो मेरे भैया उसमें लीड एक्टर है राघव के नाम से। तो मतलब भैया भी he is also into events and then acting and तो इसका मतलब तुम्हारी पूरी फैमिली में ही क्रिएटिविटी है। बिल्कुल। फादर नहीं करते कुछ? कह रहा हूँ फादर नहीं करते कुछ? पापा तो इस वक्त क्वारंटीन में ना, अगर मैं घर में बैठी हूँ तो पापा मस्त स्टार मेकर पे गाना गाते हैं और उनके अब 1500 फॉलोअर्स हो चुके हैं इसी क्वारंटीन में। एंड वो मस्त गाते रहते हैं अपना पूरा दिन। उनको पता है कि उनको खाना बनाना है, मेरे साथ थोड़ी बात करनी है, वीडियो बनानी है, देन अपना गाना है। तो उन्होंने अपना एकदम शेड्यूल बना रखा है। तो हम लोग तो फुल ऑन तीनों मस्ती करते हैं, फन करते हैं बहुत। So that's great. Now, Priya, what will you tell us about your family, and particularly since we know that during this Corona period, you and your family were facing a lot of problems. So can you tell us something about that? सर मेरी फैमिली ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। मीन्स लाइक बचपन से मेरी मम्मी का एक ड्रीम रहा है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। तो जब आफ्टर 10th स्ट्रीम चूज करनी थी तो मेरे को साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा कि मेरे को कॉमर्स लेना है। तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है। मम्मी ने बोला ठीक है, तेरे को जो पढ़ना है तू जो कर सकती है तो वो कर, ये नहीं कि मैं चाहती हूँ कि तू डॉक्टर बने इसलिए तू साइंस ले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने कॉमर्स लिया, वो भी विदाउट मैथ्स। तो सर फिर लोग कहते हैं कि कॉमर्स, वो भी विदाउट मैथ्स तो कुछ है ही नहीं। तो पापा ने बोला ठीक है, तेरे को जो लेना है, मास मीडिया था तो ठीक है, मास मीडिया में भी तेरा स्कोप है तो ले ले। फिर उसके बाद जब कोर्स की बारी आई तो मेरे को श्योर थी नहीं कि मैं आफ्टर 12th क्या करूंगी, बिकॉज मैंने जब कॉमर्स ली थी तो मेरे माइंड में सीए का बहुत सवाल था कि मेरे को सीए बनना है। इवन मैं अपनी 11th क्लास में अपने नेम के आगे सीए लिखा करती थी। फिर उसके बाद बहुत 12th में आते ही उतर गया कि भाई सीए में अगर जीडी में भी अगर आप निकल गए 5 साल की मेहनत के बाद तो समझ लो आपकी मेहनत तो फेल हो गई। तो मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, सीए नहीं होगा मेरे से। फिर लॉ की बात आई। मैंने कहा मम्मी लॉ कर लूं, बिकॉज मैं बहुत आर्गुमेंटेटिव हूँ, स्पेशली उन चीजों के लिए कि मेरे को लगता है कि सही है और मैं सही कह रही हूँ और सामने वाला गलत है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरे पापा जी खड़े हैं या कोई मीन्स लाइक बड़ा और कोई खड़ा है, नहीं मैं बात रखती हूँ। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि मैं भी चलो एक बार लॉ की बात करते हैं घर पे। तो मेरे मामा जी ने लॉ कर रखा है तो उन्होंने मेरे को बस एक ही बात बोली कि बेटा लॉ उनके लिए ज्यादा अच्छा है जिनके मतलब फैमिली बैकग्राउंड में है, बिकॉज लॉ में करियर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उनकी बात पहले मेरे को लगा कि यार सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे को लॉ करना है, बट बाद में मेरे को बात समझ में आया कि नहीं है वो मेरे लिए ही कह रहे हैं कि लॉ नहीं हो पाएगा इतने इजी से। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर और मैंने कोर्सेज फाइंड किए तो फिर बीजेएमसी मिला। फिर डैडी को मैंने पूरा बताया, मैंने कहा पापा ये कोर्स मैंने सर्च किया है। तो आपने बोला अच्छा ठीक है, मेरे को बताओ इस कोर्स में क्या है, कितने कितने मीन्स लाइक करियर ऑप्शंस है। मैंने सब कुछ एक एक करके डिटेल में हम लोगों ने बात की। तो आपने बोला ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो और ऑल द बेस्ट। फिर उसके बाद यही था ये कॉलेज। और सर सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगती थी कि जब हम कॉलेज में आए थे तो वो ये था कि जैसे आप कहते थे कि जर्नलिज्म स्टूडेंट हो तो तुम्हें न्यूज पढ़नी चाहिए, और न्यूज पढ़ने की मेरे को बिल्कुल हैबिट नहीं थी। तो मैं और रिया आते जाते वक्त जब न्यूज डिस्कस किया करते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे एक दूसरे के साथ, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती थी मुझे। तो हमेशा मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया। और मेरे भैया ने भी मीन्स लाइक मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, मेरे को 85 अबव एक्सपेक्टेशन थी मेरे से, बट नहीं हुआ, 79.6 आए थे। तो स्टिल भैया ने बोला ठीक है तू, तेरे को टेंशन क्या, तेरे को एडमिशन ही तो चाहिए, नंबर मायने नहीं रखते, तो एडमिशन चाहिए, तेरे को एडमिशन मिल जाएगा, टेंशन मत ले, तो अपना कोर्स बस दे। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। तो अगर तुम बहुत ही ब्रीफ में हमें बता सको कि अभी हाउ योर फैमिली गॉट अफेक्टेड बाय कोविड-19 एंड हाउ डिड यू स्ट्रगल विद दैट? सर मेरे मीन्स लाइक 21st मार्च को डैडी ने छुट्टी की थी एंड देन नेक्स्ट डे लॉकडाउन हो गया था 1 डे का। तो इसके बाद दिल्ली में मेरे डैड वर्क करते हैं,
तो इसीलिए फिर कभी दिल्ली लॉक हो रहा है, कभी हरियाणा लॉक हो रहा है, तो 3 महीने तक पापा घर पे ही थे। फिर उसके बाद 3 दिन के लिए खाली पापा ऑफिस गए थे और फिर पता चला उनको तबीयत ठीक नहीं लगी तो उन्होंने छुट्टी की। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि टाइफाइड है। मैंने कहा अच्छा ठीक है टाइफाइड है। फिर मेडिसिन वगैरह चली तो आफ्टर 1 वीक हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमको डैडी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। फिर तो वहाँ पे सर सबसे ज्यादा दिक्कत तो वही थी, वहीं से हमारी दिक्कत स्टार्ट हुई कि एडमिट कैसे कराएं। क्योंकि सर एक मन में डर था क्योंकि कोरोना का जैसे चल रहा है कि हॉस्पिटल में किसको फीवर है लेके जाते हैं तो पता नहीं चलता वो पेशेंट कहाँ गया या क्या है। इसीलिए मैं और भैया तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं पापा नहीं जाते हैं, डॉक्टर को तो दिखाया ही है। बट ठीक है, फिर जब वहाँ गए तो फोर्टिस में सबसे ज्यादा दिक्कत यही थी क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि कैसे एडमिट करना है, स्टेट वाइज सिटी वाइज, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ। तो फिर ठीक है सोर्सेज के थ्रू करवाया गया। तो फिर उसके बाद ये था कि घर वालों को ये लगता था कि मेरे डैड उस टाइम आईसीयू में थे और ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ रहता था 24/7। तो इसी मम्मी को सबसे ज्यादा टेंशन होती थी। बट ठीक है, मेरे को ये लगता था कि उनकी कंडीशन बेटर हो रही है, एटलीस्ट हमारे यहाँ सामने नहीं है बट उनकी कंडीशन बेटर हो रही है। फिर लेटर मैं और मामा पॉजिटिव तो फॉर्चुनेटली मेरे भैया का नेगेटिव आया था कोविड रिपोर्ट। फिर उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर गए तो ठीक है, वो तो फिर भी बहुत कम दिक्कत थी। सबसे बड़ी तो यही थी कि उनको एडमिट करवाना है और फिर कैसे घर में मींस पैनिक ना हो एंड ऑल। तो मैं और मेरा भैया उस बात का बहुत ध्यान रखा करते थे और मम्मी को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देते थे हम लोग। मीन्स अगर कोई भी अगर रिलेटिव फोन करता था ठीक है, मीन्स मेरे को बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता तो मम्मी ही बात किया करती थी। फिर जब मेरे को लगता था कि यार ठीक है मम्मी नहीं बात कर पाएंगी, मैं फोन ले लिया करती थी और मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो एडमिट हो गए हैं और कंडीशन तो बेटर हो रही है, डॉक्टर से डेली बात हो रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव वे रहा। Yeah, so Priya, we are glad that you and your family are safe and you fought with everything with courage and bravery. So obviously that's a matter of contentment. Now moving on towards the end of the program, but before that I would like to ask the last question, but I will expect an answer in one line. Shivam, where do you see yourself after 10 years? Sir, maybe shooting the best model of the world in LA. Los Angeles. Okay, and then Manvi? Sir, I think struggling to become a better person, a much After better after 10 years, you will be struggling. Of course, sir. A much better person and a great model. That's the correct answer. That should have come first. Right. Okay. So, Priya, what do you think? I mean, where you will be after 10 years? Owner of a graphic designer company. Yeah, that is something great. I mean, this is a good answer. So, moving on towards the end of the program, let me express name my team members, my gratitude to all the people, all the teachers who have joined hands with me in making this program. Obviously, I thought about the idea, but then execution was not possible without the creative and the production team, which comprises Deepika Dhawan, Ritik Ghosh, and Sumantra Sarthi Das, and then of course Dr. Susmita Bala and the entire team of DME Media School has been instrumental in creating this program. So I thank you all. I thank you three also to make this session, this episode so lively. Thank you all. Welcome.